آپ کو بتائیں کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ پہلے روز قومی اور سندھ اسمبلی میں خواتین اور اقلیتی نشستوں پر 31 امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں۔ جانچ پڑتال کا عمل 30 دسمبر تک جاری رہے گا۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ دیکھیے۔ پڑتال کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلی میں اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستوں پر پہلے روز 31 کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ قومی اسمبلی کے لیے پیپلز پارٹی کی 2 خواتین کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے، جن میں سانگھڑ سے تعلق رکھنے والی شازیہ عطا مری اور کراچی سے تعلق رکھنے والی سحر کامران شامل ہیں۔ جماعت اسلامی کی کراچی سے تعلق رکھنے والی مسفرہ جمال اور عزیزہ انجم کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی نشست پر 10 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے، جن میں 8 خواتین پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ ہیں۔ ان میں کراچی سے تعلق رکھنے والی سعدیہ جاوید، شازیہ کریم سنگھا اور سائمہ آغا شامل ہیں۔ ضلع بدین سے تعلق رکھنے والی تنزیلہ ام حبیب قمرانی، حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی نصرت پٹھان اور میرپور خاص سے تعلق رکھنے والی خیر النساء مغل کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے۔ کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدواروں میں جام شوروں سے تعلق رکھنے والی ہنا دستگیر، دادو سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر سجیلہ منظور لغاری، بدین سے تعلق رکھنے والی بی بی یاسمین شاہ بھی شامل ہیں۔ سانگڑ سے تعلق رکھنے والے جی ڈی اے کے سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کی نشست پر نامزد نند کمار گوکلانی کے بھی کاغذات منظور ہو گئے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کی خواتین کی سندھ اسمبلی کی نشست پر نامزد افشاں قمبر سمیت 31 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے آباء و اجداد کی سیاست میں پہچان رکھنے والی کراچی میں لیاری کی قومی اسمبلی کی نشست کو چھوڑ دیا۔ آصفہ بھٹو زرداری نے بھی اس بار پارلیمانی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ عام انتخابات قریب آتے ہی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں کسی بھی نشست سے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ بلاول کے ساتھ آصفہ بھٹو نے بھی کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ آصفہ بھٹو نے 2024 میں پارلیمانی سیاست میں بھی حصہ نہیں لیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 2018 میں لیاری سے انتخابی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے لیاری اور لاڑکانہ دونوں سے الیکشن لڑا، لیکن لیاری سے کامیابی نہ ملی۔ پی 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 کے پرانے جالے شکور شاد نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر بلاول کو لیاری سے شکست دی۔ لیاری سے قومی اسمبلی کی نشست بھٹوز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 1988 میں شہید بے نظیر بھٹو لیاری سے الیکشن لڑ چکی ہیں۔ آصف علی زرداری نے بھی 1993 میں لیاری سے الیکشن لڑا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی لیاری میں انتخابات میں حصہ لیا تھا۔ بے نظیر سمیت تینوں نے لیاری کی نشست جیتی۔ اس بار بھٹو خاندان نے لیاری کی نشست جالے کے حوالے کر دی۔ آزاد نوڑیو، سٹی 21۔ عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ باپ بیٹا اقلیتی نشستوں پر ارکان اسمبلی کے امیدوار بن گئے۔ تھرپارکر کے شہر اسلام کوٹ سے تعلق رکھنے والے اشوک کمار بلوچستان میں باپ پارٹی کے ٹکٹ پر رکن بلوچستان اسمبلی اور بیٹا انیل کمار رتانی ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشست پر نامزد کر لیے گئے۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔ سال 2024 کے عام انتخابات اسلام کوٹ سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹے کی منفرد سیاست۔ باپ بلوچستان اور بیٹا سندھ سے رکن صوبائی اسمبلی بننے کے لیے تیار۔ اسلام کوٹ کا سیاسی گھرانہ 2 صوبوں میں بیک وقت سیاست کرنے کے لیے متحرک۔ اشوک کمار رتنانی بلوچستان سے باپ پارٹی کے اقلیتی امیدوار بن گئے۔ بیٹا انیل کمار رتنانی ایم کیو ایم کی جانب سے سندھ سے امیدوار نامزد۔ انیل کمار رتنانی کا نام ایم کیو ایم کی اقلیتی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ اشوک کمار رتنانی سال 2002 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم سے شکست ہوئی تھی۔ اشوک کمار رتنانی بلوچستان سے آزاد امیدوار کے طور پر سینیٹر بھی بنے۔ اب وہ رکن بلوچستان اسمبلی بننے اور بیٹا انیل کمار سندھ اسمبلی میں جانے کے خواہشمند ہیں۔ عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں سمیٹنے کے لیے جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا متحرک ہو گئے۔ امیدواروں سے ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ جی ڈی اے سربراہ پیر پگارا سے سابق مشیر دوست محمد میمن نے راجہ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پی ایس 51 کنری کی سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ دوست محمد میمن پی ایس 51 کنری پر جی ڈی اے کے امیدوار ہیں۔ وہ 2002 میں اسی حلقے سے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔ اس وقت دوست محمد میمن کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے نواب تیمور ٹالپور ہیں، جو 2 بار اسی حلقے سے رکن سندھ اسمبلی اور وزیر بھی بنے ہیں۔ ساحل کے قریب واقع لاکھانی ہاؤس میں چانسلر علما یونیورسٹی نعمان عابد لاکھانی کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ماہرین تعلیم، سٹیک ہولڈرز اور مقررین کو مدعو کیا گیا۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔
लखानी हाउस में मुनक्किदा इशाइये में ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर सीमा मुगल और एनएडी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार गजम्फर हुसैन शरीक हुए। मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन शरफ अली शाह और जियाउद्दीन स्कूल की प्रिंसिपल हुमैरा जवाद समेत दीगर ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी निगरां वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने एक छत तले माहिरीन तालीम की शिरकत को खुशाइन करार दिया। सबसे पहले मैं लाखनी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तमाम माहिर तालीम को यहाँ मदऊ किया और मेरी इनसे काफ़ी तफसील गुफ्तगू हुई है। बेसिक तालीम मसला यही है कि माहिर तालीम को हम किस तरह दुरुस्त कर सकें। यकीन प्राइवेट यूनिवर्सिटी का भी ये काम बहुत अहम है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो माहिर तालीम को दुरुस्त करने के लिए और तालीम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम अली मल्ला बोले कि खुशगवार मौसम ने इशाइये का लुत्फ दुबाला कर दिया। ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को साथ बैठना चाहिए, तो बड़ा अच्छा इनिशिएट किया है कि ये डिनर के ज़रिए तमाम माहिर तालीम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। और बल्कि अभी दोस्त बता रहे थे कि इस्लामाबाद से गिलगित से जो दोस्त आए हैं वो कह रहे हैं कि कराची के इस मौसम में इन्होंने बुलाया है और डिनर को भी इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। नुमान आबिद लखानी ने कहा कि इशाइये का मकसद निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए ख्यालात और तजावीज़ का तबादला करना था। मकसद आज का ये था कि हम तालीमी निज़ाम को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तमाम पूरे मुल्क भर से तमाम इंटरमीडिएट बोर्ड्स के सरबराहान यहाँ पे मौजूद थे और हमने सब ने मिल के कोशिश की है कि तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए इसमें जो रिफ़ॉर्म्स लाए जा सकते हैं वो रिफ़ॉर्म्स पे काम किया जाए, इसके इम्तिहानात को सिलसिला को बेहतर किया जा सके, इसका परसेप्शन जो है मुल्क में उसको बेहतर किया जा सके। नुमान लखानी का मजीद कहना था कि प्राइवेट सेक्टर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल होते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। गुलिस्तान चौहर ब्लॉक 3A में अहले मोहल्ला की जानिब से बच्चों के लिए खेलों का अहतमाम किया गया। जीतने वालों को इनाम भी दिया गया। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में अहले मोहल्ला ने बच्चों के लिए खेलों का इवेंट सजा लिया, जिसमें खवातीन समेत मोहल्ले के बुजुर्ग अफराद ने भी शिरकत की। बच्चों के दरमियान रेसिंग, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, टग ऑफ वॉर और म्यूजिकल चेयर के मुकाबले हुए। कोऑर्डिनेटर खावर जैदी ने बताया कि तमाम हिफाजती इकदामात को मद्देनजर रखा गया है। हर जगह हमने सिक्योर किया हुआ है सारी चीज़ें। यहाँ बच्चे एक्टिविटी होती है, आपने देखा होगा चारों तरफ हमने कैमरे लगाए हुए हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के तहत कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हर वक्त हमारे पास यहाँ गार्ड मौजूद होते हैं, तो अच्छा हमारा माहौल है और यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि आज के दौर में बच्चों को बाहर भेजते हुए डर लगता है। मोहल्ले में ही खेलों का इनेकाद खुशाइंद है। बहुत ही एक ज़बरदस्त स्टेप है और इस तरह के स्टेप लेते रहना चाहिए। मतलब इस तरह से आगे बढ़ के आप अपने एक तो यूथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे होते हैं। मोहल्ले की औरतों के लिए ये आसानी है कि बच्चे ज़रा सा एक्टिव हो जाते हैं और हम भी घर के माहौल से थोड़ा सा निकल के बाहर आते हैं, एंजॉय करते हैं, खुद भी खुश होते हैं, अपने बच्चों को भी खुश होते हुए। खवातीन का मजीद कहना था कि इवेंट के जरिए अहले मोहल्ला से मुलाकात का मौका भी मिल गया, जबकि मुकाबले जीतने वाले बच्चों को इनामात भी दिए गए। बंस रोड पर न्यू लखपति रोल शहरियों को अपनी तरफ खींचने लगा। लोग न सिर्फ कराची बल्कि दीगर शहरों से बंस रोड पर रोल खाने आ रहे हैं। मजीद जानेंगे सैयद नुमान गुल से, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। खानों के हवाले से शहर कराची में अगर बात कर ली जाए तो बंस रोड इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल है। बंस रोड की फूड स्ट्रीट में मुख्तलिफ खाने जो है वो आपको पूरे पाकिस्तान के यहाँ पर मिल जाते हैं। मैं इस वक्त जो है वो बंस रोड के न्यू लखपति रोल पॉइंट पर मौजूद हूँ। जो सबसे ज़बरदस्त डिश है वो है जिंगर रोल, और इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं इससे रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं मंसूर लखपति साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा ज़रा, लोग जो है वो कराची आते हैं दूर दराज से खाने खाने, लेकिन आपके इस रोल पॉइंट पर हैदराबाद व दीगर इलाकों से लोग आ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? ऐसी ही बात है। एक हमारा एक बहुत स्पेशल जिंगर माया रोल है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस है, और किसी से भी अगर लखपति के हवाले से कोई बात करनी हो तो सिर्फ एक ही बात करेगा, यार अगर रोल खाना है तो जिंगर माया रोल खाना है, लखपति के रेस्टोरेंट पे चले वहाँ खाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा एक रोल है जो आप खाएं तो एक दफ़ा आपने जिसने खा लिया उसको 100% दोबारा आना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी। अच्छा, मुझे ये बताएं इसके अलावा भी कुछ है स्पेशलिटीज़ आपके पास? जी, स्पेशलिटीज़ तो बहुत सारी है मेरे पास कम से कम 140 आइटम है। ये पूरा बारबेक्यू की रेंज है, इसमें फास्ट फूड की रेंज है,
टिक्के वगैरह हैं, कबाब वगैरह हैं, फास्ट फूड में पूरा है, कढ़ाइयाँ हैं, चाइनीज़ है, 140 आइटम है तकरीबन मेरे पास। ठीक है, मंसूर लखपति हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपने इस रेस्टोरेंट के हवाले से भी बता रहे थे। और यकीनी तौर पर शहर कराची हो या अंदरून सिंध के लोग हों, वो जब भी कराची आते हैं तो वो न्यू लखपत रोल पॉइंट पर आते हैं और वो जिंगर रोल के से बहुत महजूज होते हैं। जी, JDC फाउंडेशन और इन ड्राइव के ज़रिए एहतमाम सफ़ेद पोश अफराद ने मुफ्त कंबल तकसीम किए गए। गवर्नर सिंध ने इक़दाम को काबिल सताइश करार दिया। गवर्नर हाउस में सजी एक तकरीब जहां JDC और इन ड्राइव ने सफेद पोश अफराद में कंबल तकसीम किए। तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि इन ड्राइव और JDC ने मिलकर काबिल सताइश इक़दाम उठाया है। इन ड्राइव मैंने देखा कि एक नया नाम पाकिस्तान में मुझे नज़र आ रहा है। आज इस तकरीब के आगाज़ में जो लोगों की सर्दी में इस्तेमाल होने वाली ब्लैंकेट से किया है, तो मैं उस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने बिज़नेस के साथ साथ लोगों की इस वक्त की माशी जो मसाइल हैं उसके लिए आपने सोचा, और आइंदा भी जैसे कि आपने बताया कि हर चौथी ड्राइव पर आप इसमें चैरिटी को शामिल रखेंगे। कामरान टिसूरी बोले कि जफर अब्बास लोगों को मिलवाने में आगे आगे रहते हैं, जरूरत पड़ी तो हर मुमकिन मामलात फराहम करूँगा। बहैसियत गवर्नर सिंध मैं हमेशा चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम मेरे इस शहर में, मेरे इस सूबे और पाकिस्तान में हो, तो उसमें अगर कहीं कोई मसाइल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो गवर्नर हाउस आपके लिए खुला है, आप किसी वक्त भी आ सकते हैं। ज़फ़र अब्बास भाई के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो अल्लाह ताला ने एक हमारे लिए नेमत से कम नहीं है इस शहर में, इस पाकिस्तान में, जो कि अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ JDC को लेके चल रहे हैं और हर वक्त इस कोशिश में कोशा रहते हैं कि वो कुछ ना कुछ लोगों के लिए कर सकें। JDC फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी जफर अब्बास ने बताया कि कंबल तकसीम करने की मुहिम सिर्फ गवर्नर हाउस तक महदूद नहीं रहेगी, मुख्तलिफ इलाकों में भी कंबल तकसीम किए जाएंगे। इस मुहिम का आगाज़ आज अवामी गवर्नर जनाब कामरान खान टिसूरी साहब के दस्ते मुबारक से हो रहा है, जिसमें सीधी सीधी गिफ्ट की सूरत में उनको तमाम चीज़ें दी जा रही हैं। तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी से ख़रीदी गई हैं और ये कॉज आगे चलती रहेगी। इसका आगाज़ आज गवर्नर साहब के साथ हाथों से हो रहा है। जफर अब्बास ने इंसानियत की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह करार दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ सईद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। बहादुराबाद में कोकन कम्युनिटी सेंटर में कोकन मेले का एहतमाम किया गया। कोकन कम्युनिटी के खास पकवानों ने मेले की रौनक में इजाफा कर दिया। हैदराबाद कोकन कम्युनिटी सेंटर में सजा कोकन मेला, बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां रखी गईं। कोकन मेले में ज्यादातर स्टॉल्स खवातीन ने लगाए और अपने हाथ से बनी कोकन बिरादरी के पकवान भी पेश किए। सहारा के बानी मेंबर साजिद तोंगीगर ने कहा कि मेले के अलावा भी हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जारी हैं जिनसे हम अपनी बिरादरी को सपोर्ट करते हैं। कोकन सहारा के तर्जुमान तैमूर बोले कि मेले का मकसद अपनी बिरादरी के बारे में मुस्बत तासुर उजागर करना है। हमने अपने जो पुअर हैं उनकी हेल्प करनी है, फंड रेजिंग करने के लिए हमने मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स किए हैं। ठीक है, ओवरऑल इन प्रोग्राम्स के थ्रू हमने फ़ंड जनरेट के लिए, इनकी बहबूद के लिए, अपनी बरादरी वालों के लिए हमने अपना क्रिकेट टूर्नामेंट भी किया है। ओवरऑल इसके अलावा हमारे एजुकेशन प्रोग्राम्स भी है। हम लोग अपनी वेलफेयर के लिए काओ की कुर्बानी करके जो गोश्त होता है मुस्तकीन को करते हैं। कोकन बिरादरी के अफराद ने बताया कि हमारे मुतादिद पकवानों में नारियल इस्तेमाल होता है, जबकि रिवायती खानों में मछली, सूजी का केक और दीगर शामिल हैं। ट्रेडिशनल डिशेस जो कि आपको किसी और कम्युनिटी में नहीं मिलेंगी, ना ही मेमन, आगा खानी वगैरह कहीं नहीं। जैसे हमारी कुछ डिशेस आपने बात देखी होगी, सांदन, मेथी के लड्डू, जो कि सिर्फ सर्दियों में बनते, गर्मियों में नहीं। देखें, ये सब हमारी कम्युनिटी की औरतें जो बेसिकली लो इनकम ग्रुप के हैं, हम इनको इनकरेज करते हैं कि यहाँ के हमारी ट्रेडिशनल डिशेस बेचें। आप देखेंगे ना, ज़्यादातर लोग वही चीज़ें ख़रीद रहे हैं और रीज़न ये है कि हमारी ट्रेडिशनल डिशेस है, उनको पता है कि यहाँ मिलेगा। सूजी का केक बनता है हमारा, वो हर कोई नहीं बना सकता। हमारे एक पैन केक होते हैं, उसमें फ्रेश कोकोनट, बादाम पिस्ते, ये सब रोल करके हम लोग उसको बनाते हैं, वो हमारा बहुत मशहूर। शुरका का कहना था कि कराची में कोकन बिरादरी के 4 लाख से ज्यादा अफराद मौजूद हैं जिनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरह के इवेंट जरूरी हैं।